Chalo, shall we start? Ready, all of you? Can you see the page on your screen? ओके देखो ऐसे रिप्लाई चाहिए फटाफट तो मुझे भी मजा आता है पढ़ाने में. Okay, ready with your classwork books and your pen? Okay, so if you remember last lecture we were learning about the kingdoms of kingdoms of South India. Yes, we were learning about the small kingdoms of South India. And these all kingdoms, small kingdoms, started in existence after the death of. Yes, after the death of Pulkeshi too. Very good. Now, under the title South India, we already learned about the Pallav kings, we learned about the Chola kings, and now we are going to learn about Rashtrakutas, Cheras, and Pandyas. I think this page, first paragraph was already done. The last, yes, last meaning you had written was annexed, if I am not wrong. है ना ओके सो अंडर द किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया वी लर्न अबाउट पल्लवास एंड चोलास नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम मोर किंगडम्स इन साउथ ऑफ इंडिया यस एनी डाउट बोलो बोलो ओके apart from them matlab apart from Pallavas and Cholas apart from them the Rashtrakuta Chera and Pandya dynasties also ruled in South India so it is evident that evident means it is seen right the next meaning एविडेंट मीनिंग सीन वो हमें दिख रहा है क्या दिख रहा है अभी हम लर्न करेंगे पहले मीनिंग लिखो एविडेंट मीनिंग सीन So it is evident that many dynasties ruled at different places during the Rajput age. Many dynasties. और वो तो हमें पता ही है क्योंकि हमने पल्लवास लर्न किए चोलास किए राष्ट्रकूटास चेरास पंड्यास तो what is seen what is evident that there were many dynasties who were ruling over south of India. Okay, there were frequent battles between them to annex each other's areas. Again there is a new word frequent. फ्रीक्वेंट मीनिंग रेगुलर. अब ये भी हमें पता है कि वो लोग इंटरनली भी फाइट करते हैं. याद आ रहा है याद आ रहा है ना ये जो छोटे छोटे किंगडम्स थे साउथ इंडिया में दे यूज्ड टू फाइट इंटरनली विथ ईच अदर. ए और बी की लड़ाई होती थी सी और डी की लड़ाई होती थी इंटरनली दे वर फाइटिंग. और इससे वो बंदर वाली स्टोरी याद आ रही कैट्स एंड मंकी वाली स्टोरी याद है ना. यस तो have you written this meaning frequent meaning regular? Okay, let me zoom the screen. Okay, so there were frequent battles between them to annex each other's areas. Due to the internal conflicts, there was no unity among them. Conflicts meaning battles or fights. Right, the next meaning? Conflicts meaning fights. Due to the continuous fights, there was no unity. Foreign invaders took advantage of this. Foreign invaders. Invaders matlab enemies. Again, like the new meaning. Invaders. Meaning enemies. The kings used to fight just like the cat. Right? And due to this, the foreigners started taking advantage like that monkey. We will discuss the administration and culture during the Rajput age in the next unit. अब राजपूत इतने सारे थे इतने किंगडम्स थे तो हाउ डिड दे मैनेज देयर किंगडम दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस नेक्स्ट चैप्टर. अभी हम यही लर्न करने वाले कि इन विच एरिया विच रूलर वाज रूलिंग किंगडम का नाम क्या था. ओके नाउ कैन यू सी द बॉक्स गिवन टू यू थिंग्स टू नो.
Can you see? Okay. Now, in this box, we have been given different places of North India and the dynasty which ruled. ठीक है, ये पूरे बॉक्स में हमें सिर्फ दो ही चीजें दी है, नेम्स ऑफ द प्लेसेस and the dynasty or the king who ruled over there. तो इसमें मुझे एक्सप्लेन करना कम रहेगा, लेकिन आपको याद रखना ज्यादा रहेगा कि कहां पर कौन रूल करता था, राइट? बट भले हम टॉपिक साउथ इंडिया का चला रहे अभी, लेकिन ये जो हमें एरियाज दिया है दैट इज ऑफ नॉर्थ इंडिया. शैल वी स्टार्ट द रीडिंग पार्ट? ओके. उत्पल डायनेस्टी रूल्ड इन कश्मीर. कश्मीर कहां पर आता है, नॉर्थ में कि साउथ में? नॉर्थ में, राइट? तो कश्मीर में कौन सी डायनेस्टी थी? उत्पल डायनेस्टी. सालंब, हरजर वर्मा, वनमाल वर्मा एटसेट्रा रूल्ड इन कामरूप, जिसको आज हम बोलते हैं असम. यू ऑल हैव हर्ड द नेम ऑफ असम? गोल्डन डेज इट वाज नोन एज कामरूप. और वहां पर कौन रूल करता था? सालम, हरजर वर्मा एंड वनमाल वर्मा. Then Nagbhatwan, देवराज, मिहिर भोज, महेंद्र पाल एटसेट्रा वर द ग्रेट रूलर्स ऑफ प्रतिहार, जो कि गुजरात के साइड रूल करते थे. शाहिया डायनेस्टी रूल्ड इन गांधार. गांधार विच इज करंटली अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान. गांधार राज नाम सुना है ना महाभारत में? शकुनी, यस. देन चांडेलाज रूल्ड इन बुंदेलखंड. बुंदेलखंड जो कि अभी मध्य प्रदेश में है. And in the beginning, Tomar rules over Dillik, which is today known as Delhi. Tomar का तो हमने पृथ्वीराज चौहान में लर्न किया था. Okay, so Delhi was ruled by Tomar. So these are the name of the dynasties and the kings. Any doubt? Okay, now let's learn again. अभी वापस साउथ इंडिया में जाते हैं, ठीक है? Rashtrakutas ruled South India. With the fall of Chalukya dynasty, Rashtrakuta came into power. तो पहले चालुक्य थे, उनको हरा के आ गए राष्ट्रकूटास. राष्ट्रकूटा मीन्स हेड ऑफ अ स्टेट और एरिया, राइट? साउथ इंडियन लैंग्वेज में राष्ट्रकूट का मतलब क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट. राष्ट्र मतलब स्टेट, कूट मीन्स हेड. Okay, it is believed that the founder of the dynasty was an officer of that community and hence the dynasty was named after him. एक ऑफिसर जो था वो खुद किंग बन गया. फ्यूडल लॉर्ड्स याद है आपको, सामंत, राइट? तो वो पहले ऑफिसर ही थे और फिर किंग बन गए. तो साउथ में भी ऐसा हुआ कि एक ऑफिसर था और क्योंकि वो हेड ऑफ द एरिया था उसको राष्ट्रकूट बोलते थे. अब वही ऑफिसर किंग बन गया तो ही गेव द नेम ऑफ द डायनेस्टी एज राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. ओके. आउट ऑफ many rulers, Govind III was the most powerful king. पूरे राष्ट्रकूटा किंगडम में गोविंद III was very powerful. In the 8th century, he established a powerful kingdom in Deccan. Deccan means south. Okay? अभी आपको पता है कि साउथ को गुजराती में क्या बोलते हैं? Anybody? नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं, साउथ को नो, पश्चिम मीन्स वेस्ट. ये साउथ मीनिंग दक्षिण, ठीक है? तो जब ब्रिटिशर्स आए, यू नो, ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एंड दे रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मोर देन 200 years, है ना? तो हम लोग जिसको दक्षिण बोलते थे, तो ब्रिटिशर्स को ये प्रोनाउंस करना नहीं आता था, दक्षिण वो नहीं बोल पाते थे, तो वो क्या बोलते थे? डेक्कन. सो डेक्कन कम्स फ्रॉम द वर्ड दक्षिण. दक्षिण में से डेक्कन, जिसका मीनिंग है साउथ. तो अभी हम साउथ इंडिया के किंगडम्स ही कर रहे हैं, right? So Govind III, he established a very powerful kingdom in Deccan. Deccan means which area? साउथ और दक्षिण, ठीक है? तो अभी आप हाँ, तो अभी आप मीनिंग में क्या लिखोगे? डेक्कन में लिखो साउथ और ब्रैकेट में लिखो दक्षिण, ताकि आपको याद रहे कि दक्षिण में से वर्ड आया डेक्कन, जिसका मीनिंग है साउथ. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. डेक्कन समझ में आ गया? यस और नो?
Yes. The Pandyas also ruled over South India. अभी जाते हैं पंड्यास की तरफ. The Pandya dynasty is believed to be very ancient. Ancient meaning old, Purani. Okay. Megasthenes, the Greek traveler, notes that females used to rule in this community. ग्रीस से एक ट्रैवलर आया था इंडिया में, whose name was Megasthenes, right? तो Megasthenes came to India, and when he visited south of India, at that time Pandyas were ruling. और उसने क्या नोटिस किया, that most of the rulers of Pandya dynasty were females. All of them, but most of them, right? तो क्या बोलते हैं, नारी शक्ति पता है ना. मोस्ट ऑफ द विमेन रूल्ड ओवर द साउथ ऑफ इंडिया, स्पेशली ड्यूरिंग द पंड्यास. Okay. The inscriptions of Emperor Ashok also contain references to the Pandyas. You have heard the name of King Ashok? उसने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन, राइटिंग ऑन द वॉल, राइटिंग ऑन मेटल, राइटिंग ऑन केव्स, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन. ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेन पे या पेंटिंग नहीं करते, लेकिन वो ऐसे हैमर और नेल से टक 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 करके लिखते हैं वॉल के ऊपर. आप कैसे लिखते हो पता है ना आपको. तो किंग अशोक के टाइम पे जो रिटर्न पीसेस हमको मिले हैं, देयर ऑल्सो वी हैव नोटिस सम इंफॉर्मेशन अबाउट द पंड्यास. ओके. द पंड्यास रूल्ड इन प्रेजेंट डे मदुराई एंड तिरुवेलनेली इन तमिलनाडु. आज जहां पर तमिलनाडु में मदुराई और तिरुवेलनेली जैसे सिटीज है, उस टाइम पे वहां पंड्यास वर रूलिंग. Cheras ruled over South India. अब एक और डायनेस्टी है, चेरा डायनेस्टी. Chera is now known as Kerala. I think you all know where is Kerala in the map of India. Yes. तो आज जहां केरला है वहां पर the Cheras used to rule. In ancient time, Kerala was part of Tamil Nadu itself. तमिलनाडु केरला सब एक ही था. उस टाइम के पे स्टेट्स नहीं बने थे, किंगडम्स थे. Later on, Kerala और मलयालम separated. फिर केरला एंड तमिलनाडु got separated. Kapalputra Rajya is mentioned in the inscriptions of Ashok. Kapalputra Rajya means Kerala, जो अशोक के इंफॉर्मेशन में वो भी है. Athan was the first strong ruler of this dynasty, and Cheran Shatrungan was a powerful ruler of this dynasty. So Athan and Cheran Shatrungan, they were very powerful kings of Kerala today. और उस टाइम पे उसको बोलते थे चेर डायनेस्टी. I hope you can understand everything properly. Okay. अभी जो हमने ये टेबल लर्न किया, what information did we get in this table? इसमें हमने क्या लर्न किया था? What did we learn in this table? Yes, we learned about the dynasties in the places of North India. Now when I turn the page, you will have the same type of table. ऐसा जिसमें क्या इंफॉर्मेशन होगा, इंस्टेड ऑफ नॉर्थ वी विल हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ साउथ इंडिया, के साउथ इंडिया के कौन से पार्ट में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी. ओके, आई एम चेंजिंग पेज. कैन यू सी द टेबल ओवर हियर? यस. ओके, लेट अस गेट द इंफॉर्मेशन. चालुक्या रूल्ड ओवर वातापी, जो कि आज उसका नाम है बादामी, वो कर्नाटक में है. राष्ट्रकूटा रूल्ड ओवर मन्यखेत. होयसलास रूल्ड द्वार समुद्र जिसको आज हम बोलते हैं कर्नाटक. नाउ हैव यू सीन द मैप ऑफ इंडिया? आपको पता है कि इंडिया साउथ में कितना दिखता है है ना. तो दिस इज द प्लेस वेयर जहां पर कर्नाटक है. ओके. और यहाँ है हमारा अरेबियन सी. द्वार समुद्र, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड द्वार? द्वार मतलब गेट. यस, द्वार मतलब गेट. एंड समुद्र में ओशन और सी. तो मैप पर से आपको पता चलता है कि कर्नाटक से आप डायरेक्ट समुद्र की तरफ जा सकते हो, है ना. तो उस टाइम पे बोला जाता था
द्वार समुद्र, मतलब समुद्र की तरफ उसका द्वार है। ओके, विच रूलर्स रूल्ड ओवर देयर? होयसलास। क्या नाम था? होयसलास। ओके, देन यादव रूल्ड देवगिरी, जो अगेन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में है। चोलास ओवर तांजोर, तांजोर इज अगेन अ पार्ट ऑफ तमिलनाडु। सो दीज आर द dynasties which ruled in south of India. In any doubt? Okay. Now, what was the name of the chapter? Rajput age. And we learned about all the Rajput rulers who ruled in North India as well as in South India. राइट, तो राजपूत के बारे में तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, बट एक्चुअली राजपूत ओवरऑल, चाहे वो नॉर्थ में हो या साउथ में हो या ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, कहीं पर भी हो, राजपूत एज अ होल इज अ वेरी ब्रेव डायनेस्टी। उनके लोग जो होते बहुत ही करेजियस होते। आपको पता होगा कि आज भी राजपूत को हम बापू बोलते हैं, पता है? एंड दे आर वेरी ब्रेव। वो किसी को हेल्प करते हैं तो भी अच्छे से, मतलब फ्रेंडशिप भी अच्छे से फॉलो करते हैं, एनिमिटी भी अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। मतलब वो अपनी कंट्री के लिए मर भी सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं। समझ में आ रहा है? They were very brave, very courageous, and not only men, Rajput women was powerful. जिसको हम बोलते हैं राजपूतानी। राजपूतानी सुना? ये हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है। यस, बोलो, एनी डाउट्स? ओके, तो ये जो राजपूतानी थी, द राजपूत विमेन, दे वर ऑल्सो वेरी पावरफुल। अगर जरूरत पड़े तो वो खुद भी तलवार लेकर युद्ध में के मैदान में चली जाती थी। और जब भी उनके घर में से कोई भी मेल बैटल फील्ड में जाता था, वेदर इट इज द सन और हस्बैंड और ब्रदर, तो हमेशा उनको स्माइलिंग फेस के साथ भेजती थी। ऐसा नहीं कि अरे मेरा भाई जा रहा है, वापस आएगा कि नहीं, जिंदा बचेगा कि नहीं, हाथ पैर टूट जाएंगे तो क्या। नो, they used to always encourage their brothers, husbands and sons, and with a smiling face they used to send them to the battlefield, and in case if required they also went to fight a battle. ठीक है? और बैटल में जनरली क्या होता है कि एक किंग जीतता है, दूसरा किंग हारता है, ऐसा ही होता है ना? यस, तो अभी क्या होता है कि जीतने वाला किंग जो है वो सामने वाले किंग को हरा देता है और उसका एरिया वो खुद कैप्चर कर लेता है। ये भी आपको पता है। तो इसके बाद क्या होता है, दैट व्हेन द लूजर किंग, अब लूजर किंग जो है, आइदर ही विल डाई बाय वाइल फाइटिंग और एल्स ही विल अलाइव। तो मर जाता है तो ठीक है, चलो गया। लेकिन अगर जिंदा बच जाता है तो विनर किंग क्या करता है, उसको या तो जेल में डाल देता है, या तो उसका पूरा एरिया, उसका पैलेस, उसका जो रॉयल महल होता है वो सब ले लेता है, एंड ही बिकम्स अ सिटीजन। जो आदमी की तरह रहना पड़ता है, द किंग ऑल्सो एंड द फैमिली ऑफ द किंग ऑल्सो। ओके, तो पहले के जमाने में अब क्या करते थे कि whoever was the loser king, if he dies then the problem solved, but if he is alive he is imprisoned, उनको जेल में डाल देते, and all the family members सबको महल में से बाहर निकाल देते थे, और वो विनर किंग जो है वो अपनी खुद की सेवा करवाता था, उनको सर्वेंट बना देता था। राइट, फिर वो किंग के घर में जो लेडीज होती थी उनसे शादी करके उनको भी परेशान करता था। देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स एट दैट टाइम। तो राजपूत वीमेन कैसी थी, उनको अगर पता चलता है, द लास्ट राजपूत, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रेवरी ऑफ द राजपूत वीमेन, इफ दे कम टू नो कि मेरा हस्बैंड या मेरा सन या मेरा ब्रदर लड़ाई हार गया है, इसका मतलब पैलेस जाएगा, सभी विमेन को, राजपूत लेडीज को वो विनर किंग लेके जाएगा। तो वो क्या करते थे कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द विनर किंग, दे देमसेल्फ यूज टू प्रिफर टू डाई। वो ऐसा मानती थी लेडीज के विनर किंग के पास जाने से, उनकी सेवा करने से अच्छा कि हम मर जाए। और वो कैसे मरते थे पता है आपको?
अगर आपने पद्मावत मूवी देखी है तो आपको पता होगा. Anybody has seen that? Yes, वो अपने आप को जला देती थी. They used to burn themselves alive. और उसको क्या बोलते थे? जौहर. वो जौहर करते थे. जौहर करना मतलब अगर उनके फैमिली के मेल मेंबर्स इफ दे डाई इन द बैटल, then the Raj women they used to perform jokar, means they used to burn alive. कि सामने वाले की पार्टी में जाना, पार्टी मतलब हैप्पी बर्थडे वाली पार्टी नहीं, सामने वाली टीम में जाना, इससे अच्छा वी विल बर्न अलाइव. दिस इज नोन एज जौहर. और ऐसे राजपूत, अगर आप राजपूत की स्टोरीज पढ़ोगे लाइब्रेरी में से या बुक्स है आपके पास, तो देर आर सो मेनी इवेंट्स वेयर इफ the Rajput has died or lost the battle, then the Rajputani they prefer to do Johar. समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है बेटा? यस. कैन यू लिसन टू मी ऑल ऑफ यू? व्हाई नो रिप्लाई? Okay, so the same thing we are going to learn in this paragraph. Okay, Rajputs were very brave. They felt proud to give up their lives for their country. To die but never fear. मर जाएंगे लेकिन डरेंगे नहीं. To protect those who seek refuge. Seek refuge means who come for help. अगर आप चाहते हो कि मेरी रक्षा करो तो खुद मर जाएंगे लेकिन आपकी रक्षा करेंगे, ऐसे थे वो. ओके, सो राइट द नेक्स्ट मीनिंग सीक हेल्प. ये पूरा साथ में लिखो. सीक रेफ्यूज. Seek refuge means those who want help. The next word will be seek help. Seek refuge meaning want help. To die but never fear. To protect those who want help. To speak the truth and fight for the truth were the special traits. Traits means their features, their characteristics. Write the next word traits meaning features. राजपूत की क्या क्या स्पेशलिटी थी? They used to give the lives for the country. They used to die. They were never afraid of anybody. They used to protect the people who come to help, and they would speak the truth always, and they would fight for the truth. सच बोलेंगे, सच के लिए लड़ेंगे भी. समझ में आ रहा है ना ऑल ऑफ यू? Rajput women means Rajputani. They were also known for their chastity. Chastity means self-defense. Write the next meaning. Self-defense. Now what is the self-defense? Yes, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, आत्मरक्षा. मतलब उनके घर में अगर कोई मेल मेंबर्स नहीं भी है, बैटल फील्ड में गए थे तो जाते तो अपने आप का प्रोटेक्शन खुद कर सकते थे. Okay, so the Rajputani were known for their chastity and fearlessness. They sent their husbands, sons, and brothers to the battlefield with a smiling face. They were so brave that if need be, they would fight on the battlefield. वो खुद भी तलवार लेके चली जाती थी. They preferred Johar. Johar का मीनिंग क्या लिखा है ब्रैकेट में? इट्स ऑलरेडी गिवन. Johar means to burn alive. They preferred Johar, that is to burn alive if their husbands were defeated or attained martyrdom. Attained martyrdom means to die, जिसको हम बोलते हैं शहीद होना. तो ये नेक्स्ट मीनिंग लिखो, attained martyrdom. ये पूरा साथ में ये attained martyrdom. Meaning died. Attained martyrdom meaning died. So they would prefer to do Johar if their husbands were either defeated, हार जाते थे, or else शहीद हो जाते थे. The heroic stories of the Rajput age are engraved in golden letters in the history of India. Golden letters मतलब गोल्ड से लिखा है ऐसा नहीं, बट आप कोई भी हिस्ट्री की बुक लोगे, कोई भी राजपूत की हिस्ट्री पढ़ोगे,
So you can see there are so many incidents of the bravery of Rajputs. Okay, so Rajput make a very proud history of India. इसलिए राजपूत एज का हमने पूरा चैप्टर लर्न किया, right? This is the end of the chapter. If you have any doubts, you can tell me. Anybody, any doubts? Any doubts? Okay. Now you can see at the bottom of the page, you have some more information given. Rani Vav is a seven-storied stepwell in Patan, Gujarat. Udaymati, the wife of Bhimdev II, constructed it. It is an unparalleled example of a stone architectural structure. Okay, stepwell. Now, do you know what is a well? Yes. जनरली हमने जो वेल देखे वो ऐसे होते हैं, ऐसे दिखते हैं. इसके अंदर आप रस्सी डालते हो, उसके उसके साथ वो बकेट को टाई करते हो, रस्सी खींचते हो तो पानी आता है. ये वाला वेल आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव सीन, या तो सच्ची बात या मूवीज में देखा है ना. लेकिन पाटन जो कि गुजरात में है, पाटन में स्टेप वेल है. स्टेप वेल कैसा होता है कि उसका जो यस ओपनिंग जो होती है वो एकदम ब्रॉड होती है. इट इज वेरी ब्रॉड और उसमें स्टेप्स होते हैं. मतलब आपको रस्सी बांध के पानी नहीं भरना पड़ता है, आप नीचे उतर ले सकते हो. और ये जो पाटन में स्टेप वेल है इज 7 स्टोरीड स्टेप वेल. स्टोरी मतलब वो कहानी वाली स्टोरी नहीं, स्टोरी मतलब फ्लोर्स, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर ऐसे. पता चला ऑल ऑफ यू? तो पहले तो मीनिंग लिखो, स्टोरीड मीनिंग फ्लोर्स. तो बिल्डिंग्स तो सबने देखे हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर जो कि ऊपर की तरफ जाते हैं. लेकिन स्टेप वेल में क्या होता है कि 4 फ्लोर्स नीचे की तरफ जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर. ठीक है, तो द सेम टाइप ऑफ स्टेप वेल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द वाइफ ऑफ भीमदेव टू. भीमदेव टू वाज अ सोलंकी किंग, वो सोलंकी डायनेस्टी के किंग थे. और उसकी वाइफ जो थी उदयमती, शी कंस्ट्रक्टेड दिस स्टेप वेल ऑफ 7 स्टोरी फॉर द पीपल. उनकी प्रजा के लिए, उनके पब्लिक के लिए उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट करवाया था. एंड एवरी स्टेप, यहाँ पर जितने भी स्टेप्स आप देख सकते हो, in every step there was beautifully artistic pictures drawn और structure बना था stone का, but stone में भी there were beautiful pictures and inscriptions done. आज भी अगर आप पाटन में जाते हो तो you can see this रानी की वाव. ओके, और हमारी जो 100 रुपीज की नोट है, शायद 100 रुपीज ये आप चेक कर लेना, उसके पीछे ये रानी की वाव का पिक्चर है इंडिया की 100 रुपीज की नोट में. आफ्टर दिस लेक्चर गेट्स कंप्लीटेड, अब हाँ, न्यू वाली न्यू 100 रुपीज नोट देखोगे ना, मम्मी से बोलना, वो आपको दिखाएगी. फिर देख के वापस दे देना नोट, अपने पास मत रखना. हाँ, ये जूनागढ़ में भी देर आर मेनी स्टेप वेल्स, बट वो छोटे है, ये एकदम बड़ा है. ओके, देन सी द सेकंड पॉइंट. यस, Vastupal and Tejpal built Jain temples in Delwara in Mount Abu, Rajasthan, in which marble pillars, arches, domes, balconies, etc. were engraved minutely by skilled artists. You all have heard the name of Mount Abu? यस. तो माउंट आबू में देर आर दिलवारा टेम्पल्स. कभी भी आप माउंट आबू जाते हो और वहां साइट सीइंग के, माउंट आबू एक्चुअली इज अ हिल स्टेशन, वो हिल स्टेशन है. लेकिन आप कभी भी वहां जाओगे साइट सीइंग के लिए तो वहां पर खास आपको ये दिलवारा टेम्पल्स देखने ले जाते हैं. ओके, एंड दिस इज अ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स. वहां पर बहुत सारे टेम्पल्स एक साथ है विच आर जैन टेम्पल्स. वहां पर आपको जैनिज्म का, रिलीजन का वो देखने को मिलेगा. एंड हु हैड कंस्ट्रक्टेड दिस? वस्तुपाल एंड तेजपाल. एंड ऑल दिस जैन टेम्पल्स आर मेड ऑफ मार्बल्स. पिलर्स भी मार्बल के, बालकनी भी मार्बल की, आर्चिस, डोम्स. अब ये शायद आपको नहीं पता. यू नो व्हाट इज अ पिलर? यस. यू नो व्हाट इज अ बालकनी? यस. नाउ आर्चिस, अगर कोई ऐसे शेप का बिल्डिंग है
ऐसा ऐसा आपने टॉप देखा है? हाँ, यस, ताजमहल में। तो इसको बोलते हैं आर्चिज। और अगर ऐसा शेप है तो इसको बोलते हैं डोम। So in the Delwara temples, there are such type of arches, there are domes, there are pillars, there are balconies, everything made of marble and artistically skilled artists, मतलब एकदम जो experts होते हैं उन लोगों में छोटी छोटी डिजाइन करके they have made it very beautiful. Do you understand, all of you? See the third point. Vastupal and Tejpal were the ministers of Rana Veer Dhaval of Dholka in Gujarat. गुजरात में एक राजा था राणा वीर धवल और वस्तुपाल तेजपाल उनके मिनिस्टर थे, मतलब ऑफिसर्स थे। ओके, और ये ऑफिसर्स ने ये सब कंस्ट्रक्शन करवाया था। एंड वस्तुपाल कंस्ट्रक्टेड जैन टेम्पल्स एट गिरनार, पालिताना, शेरठा, डाबोई, एवरीथिंग इन गुजरात। तो दिलवारा माउंट आबू में तो है ही, बट माउंट आबू इज इन राजस्थान। Not only in Rajasthan, in Gujarat also, Vastupal has constructed so many jain temples, especially at Girnar, Palitana, Shertha, Daboi। और आप कहीं भी इसमें से कोई भी प्लेस में अगर आप जाते हो तो वहां के कोई फेमिलियर पर्सन है तो उनको बोलना, आपको सब ये दिखाएंगे। ऑल द जैन टेम्पल्स स्टिल स्टैंड टुडे। हाँ, तो ये आज भी है, ऐसे ही खड़े हैं। थोड़े बहुत डैमेज हो चुके हैं, बट दे आर स्टिल इंटेक्ट। Okay, so here we actually end our chapter. If you have any doubts, you can please ask me. कुछ ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई हो? Any doubts? Anybody? No doubts? Okay. Now in next lecture, we will not start with the exercise of this chapter, but I will give you the paper style and we will start with the revision of unit 10. Okay? Because your exams are coming nearer. Exams are coming nearer. Okay, so वैसे भी this chapter is not in your syllabus. Do you understand? So इसकी वर्कबुक एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट आफ्टर द टेस्ट एंड नेक्स्ट लेक्चर फर्स्ट आई विल गिव यू द पेपर स्टाइल एंड देन वी विल स्टार्ट रिवीजन. एनी डाउट्स एनीबॉडी? दैट आई विल गिव यू इट, वो सब हम पेपर स्टाइल में लिखेंगे। उसके लिए यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अभी चैप्टर के रिलेटेड कोई डाउट्स है तो बोलो, एनीबॉडी? नो डाउट, श्योर? ओके, देन शैल वी एंड द लेक्चर? ओके, चलो, बाय बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।